intellectual property right, special emphasis on copyright. Today's resource person is amongst us. So it's my immense pleasure to introduce about today's resource person, a person of erudition, Dr. Preeti Khetarpal. Dr. Preeti Khetarpal is Assistant Professor, Human Genetics, Health Sciences, Central University of Punjab, Bathinda. She did her MSc from Punjabi University, Patiala, and PhD from Kurukshetra University. She has accredited of GATE and CSIR UGC NET. She has been awarded various fellowships from the Department of FAC, EST, New Delhi. Her area of specializations are reproductive and development genetics, population genetics, intellectual property rights. She has various research publications of national and international repute. She has attended various workshop, conferences, and training programs, and also delivered lectures as a resource person at various. She has also got various research grants and is registered as patent agent. She is a member, Intellectual Property Rights Cell and Institutions Innovation Council. So we heartily welcome you, ma'am. Before formally start this function, I would like to request our worthy principal, Dr. Neena Seth Pajni, to say a few words to have their blessings. Over to you, ma'am, Dr. Neena Seth Pajni. Welcome, Dr. Preeti. Am I audible? Yes. Welcome, Dr. Preeti. Thanks for sparing time to introduce about the IPR. As you are well aware, that R is an undergraduate college and with English and with Punjabi only, and we don't have research department. So you are requested to kindly make it as easy. कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को थोड़ा सा पंजाबी में बता दें ताकि उन्हें समझ में आ जाए। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा लगता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना मतलब कि जो आपके इंटेलेक्ट का प्रोडक्ट है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कुछ भी हो सकता है। ये जैसे आप बहुत से बच्चे हमारे हैं जो म्यूजिक में हैं, जो सॉन्ग खुद लिखते हैं और अपनी सीडीज वगैरह निकालते हैं, तो ये जो सॉन्ग्स हो गए, आप कुछ भी पोएम लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, कुछ भी आर्ट पीस है, तो आप उसे कैसे कॉपीराइट कर सकते हो ताकि कोई और उसे यूज ना कर सके। कुछ बच्चे बिजनेस में हैं। अभिषेक पाठक, काइंडली म्यूट। अभिषेक पाठक। तो कुछ बच्चे बिजनेस में हैं तो वो मतलब कि कुछ इनोवेशन करते हैं, तो उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स और ये सब, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ड्रेस डिजाइन, भी एनीथिंग। मतलब कि कोई बच्चा अगर क्ले मॉडलिंग में भी कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया करता है कि उसे लगता है कि ये मेरा है और ये प्रोटेक्ट रहना चाहिए और इसको मैं आगे बिजनेस की फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो आप उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आप लिखते हैं, मान लीजिए ब्लॉग लिखते हैं और उसके आगे आपने देखा होगा लोग लिख देते हैं अपना नाम के कॉपीराइट और उसके आगे डेट लिख देते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं या उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ओरिजिनल मेरा है, किसी और का नहीं है, और उसको कॉपीराइट कैसे कराएंगे। तो आपके दिमाग में जो भी सोच की इनोवेशन होती है, एक नया प्रोडक्ट निकल के आता है, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में मैडम आज बताएंगे। मैडम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा से है, बहुत ही डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर है, डिलिजेंट रिसर्चर है, इन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा काम किया है, तो आपके लेवल पे बताएंगे, पेशेंस के साथ सुने। ओवर टू मैडम प्रीति प्लीज। थैंक यू। Thank you, ma'am. A very good afternoon to all of you. Thank you, Dr. Neena Seth Pajni, Principal, Gobind Public College, for giving me this opportunity to interact with the faculty and students of your college. And I also thank Dr. Varinder Kumar for giving such a nice introduction.
So of course, we will start our journey. We will try to understand what intellectual property is. I'm sharing my screen. I hope it is, you can see these, these slides, right? All right. Hello? Yes, it is visible. It is visible. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. So Yeah. now we will start our journey to understand what intellectual property rights is. And as I have been told, I'll give special emphasis on copyright. तो सबसे पहले ना आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बहुत कोई भारी भरकम चीज़ है और सिर्फ इंटेलेक्ट लोग, पीएचडी, पोस्ट डॉक या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उन लोगों के ही मतलब की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, छोटे से छोटा बच्चा भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ओनर हो सकता है और ये सब कुछ हमारे आसपास है। हमें सिर्फ इसको देखकर समझने की जरूरत है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या? इनटैंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। इनटैंजिबल से मतलब है दिखता नहीं है। हम इसे क्यों प्रॉपर्टी बोल रहे हैं? क्योंकि जस्ट लाइक दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी से अभी तक हम लोग क्या समझते हैं? गोल्ड, कोई घर, पीस ऑफ लैंड, आपका कैश, आपके एफडीज, यही सब कुछ, राइट? तो इस प्रॉपर्टी के लिए भी आप कुछ ना कुछ करते हो ना कहीं रजिस्ट्रेशन करते हो, आपके पास कोई डिटेल रहता है, आप उसको इनहेरिट करते हो, गिफ्ट करते हो, यू कैन सेल इट, यू कैन परचेज इट। तो इसी तरह से हम अपने इंटेलेक्ट से ओरिजिनेट हुए प्रॉपर्टी के साथ भी सब कर सकते हो। आप रजिस्टर कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो, लाइसेंस भी कर सकते हो। द ओनली थिंग इज कि इसका फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे आप लैंड को या गोल्ड को देख सकते हो, घर को देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो, ये इसको किसी टैंजिबल फॉर्म में जब तक आप नहीं लाओगे तब तक ये आप इसको देख नहीं पाओगे। बट ये आपके ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। इस पे इसको हमारी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। हम लोग सोच सकते हैं, हमारे कुछ आइडियाज रहते हैं, हम लोग क्रिएटिव है, हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और हमें ये समझना है कि वो जो हमने सोचा उसका क्रेडिट हमें मिले और हम उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सके। थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएंगे। कई बार जैसे सबको लगता है कि बहुत भारी कुछ चीज़ है, पता नहीं क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बड़ी सी बात की जा रही है, कुछ नया सा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पुराने एंशिएंट टाइम्स में भी किंग्स और एम्परर जब थे तो वो अपने ऐसे रोमन में कल्चर में है कि बताया कि वहाँ पे कोई अगर बेक कर बहुत डिलीशियस केक बनाता है बिल्कुल नई रेसिपी से, तो वहाँ के एम्परर उनको 1 साल तक का राइट देते थे कि कोई भी सेम केक नहीं बेक करेगा, सिर्फ वही बनाएंगे और ऑब्वियसली क्योंकि वही बना रहे हैं तो उनको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। ऐसे ही स्पेशल राइट्स दिए जाते थे एंशिएंट टाइम में भी कारीगरों को, बुनकर को, बड़े बड़े जो संगीतकार थे उनकी प्रतिभा को, उनके इंटेलेक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता था। ये एक तरह से प्रतिभा को पहचानना मतलब इंटेलेक्ट को रिकॉग्नाइज करना और कुछ स्पेशल प्रिविलेज देने जैसा है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लड़ाइयाँ हुई देशों के बीच में, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ और सारा का सारा जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। तब सारे कंट्री साथ में बैठे एंड दे डिसाइडेड कि कुछ ट्रेड का कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब सबके अलग अलग विचार, उनका कोई एक प्लेटफॉर्म पे वो लोग बैठे नहीं और वो कुछ आईटीओ जैसा कुछ इतना बन नहीं पाया। लेकिन वाइपो केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज पीसफुल के काम भी चल रहे थे। तो यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी जो 1967 में क्रिएट हुई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने पूरे वर्ल्ड में डॉक्यूमेंटेशन जैसा काम किया है, सब कुछ डिफाइन किया है। जो पहले बहुत वेगली डिफाइन होता था उसको अच्छे से डिफाइन किया है। मेंबर कंट्रीज आपस में कैसे प्रमोट करेंगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कहीं यूएस में अगर कुछ हुआ है, कोई बनाता है, क्रिएट करता है तो उसकी प्रोटेक्शन इंडिया में ना हो। तो ये सारे वो ट्रीटीज इन सबको एडमिनिस्टर करता है। और उसमें आप लोगों ने गैट के बारे में भी सुना होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो उसमें बहुत सारे राउंड हुए थे और यूरोगे राउंड में ट्रिप्स का जो कंसेप्ट आया था कि इसमें, क्योंकि अगर मेंबर कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आपस में बिजनेस करना है
तो हमें उससे जुड़े हुए, उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी पहचानना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। सो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये टर्म जो थी ये तभी वहां पे आई। तो ये थोड़े से टर्मिनोलॉजी जरूर है कि आप वाइपो को समझ सकते हो, आप ट्रिप्स को समझ सकते हो, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप यू कैन जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट। अगर आप किसी को और डिटेल जाना है कि वाइपो कैसे काम करता है, आप ये इसकी वेबसाइट का मैंने स्नैपशॉट दिया, आप इसको यू कैन गो थ्रू इट। सो इसी वाइपो की ही जो ट्रीटीज एंड ट्रिप्स डिफाइन करता है कि आपको बोल रहे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है, इंटेंजिबल फॉर्म में है, उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, उसी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से इसको अलग अलग तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोसेस है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, तो उसको पेटेंट में प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही नेम होता है बिजनेस का, उसको हम ट्रेडमार्क में करते हैं। कैसे उस प्रोडक्ट का अपीयरेंस है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, फिर कॉपीराइट है, इन सब के बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं। आप किसी को नहीं बताना चाहते हो कुछ भी, आप नहीं शेयर करना चाहते कोका कोला की रेसिपी, फाइन, आप उसको ट्रेड सीक्रेट के तौर पे रखिए। अब ये जिसने रेसिपी बनाई उसका ये इंटेलेक्ट था ना कि उसने इतना एक ऐसा बेवरेज बनाया जिसको आज तक हम लोग नहीं जानते कि वो कैसे रेसिपी बनाया जाता है, तो रखिए उसको ट्रेड सीक्रेट पे, कोई भी रख सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जो डिजाइन होते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए है। और हमारे अपनी कंट्री में प्लांट्स की वेराइटीज को जो भी फार्मर करते हैं, ब्रीडर डेवलप करते हैं या साइंटिस्ट डेवलप करते हैं न्यू प्लांट वेराइटीज को, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए सेपरेट लॉ है। प्लांट वेराइटीज को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो वाइपो ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिसका सभी मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना है। कुछ गाइडलाइंस के लिए स्ट्रिक्ट है और कुछ के लिए फ्लेक्सिबल है कि कंट्री टू कंट्री वो वेरी कर सकता है और आप अपने डिपेंडिंग अपॉन आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कंट्री की, उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज जो मेंबर गवर्नमेंट्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। हमारी अपनी कंट्री की बात करते हैं अगर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जब आ जाते हैं तो यहाँ पे लीगल चीजें भी आ जाती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अलग अलग लॉ है। ये इंडियन लॉ है, पेटेंट एक्ट 1970 पैटेंट्स के लिए है, कॉपीराइट एक्ट 1957 है, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999। सो इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आईपी के लिए अपना अपना एक्ट है जिसमें सारा डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि ये दूसरे फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी की तरह ही है। आप किसी के घर में नहीं ना घुस सकते बिना पूछे, आप कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट नहीं ना पहन सकते बिना पूछे। सो ये भी उसी तरह से, और अगर करेंगे तो क्या होगा, वो जाएगा पुलिस में कंप्लेंट करेगा, ठीक है। वो आपको, आप किसी का घर तोड़ दोगे, आप किसी का घर जला दोगे, खत्म कर दोगे, तो क्या करेगा, वो जाएगा कोर्ट में जाएगा और वहां पे आपको सजा भी होगी, आपको उसको इकोनॉमिक डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम इसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आपने किसी और के इंटेलेक्ट को चोरी करने की कोशिश की, उसको नुकसान पहुंचाया, उसके जो इकोनॉमिक फायदे को नुकसान पहुंचा, तो वो आपको इसी तरह से कोर्ट में लेके जाएगा और ये जो भी फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्ट में केस लिया जाएगा और जो भी इस एक्ट में प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन होगा। अब हम जितने भी आईपीआर्स की बात करते हैं, ये समझना जरूरी है कि ये टेरिटोरियल इन नेचर है। ज्यादातर जितने भी फॉर्म्स ऑफ आईपी है उनका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एक्सेप्ट कॉपीराइट। कॉपीराइट बोलते हैं कि आपने जो चीज बनाया साथ के साथ आपका प्रोटेक्ट हो गया, पूरे कंट्रीज में प्रोटेक्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, तो आपके पास प्रूफ रहता है। इट कैन बी होल्ड ओनली बाय लीगल एंटिटीज, मतलब पर्सन होना चाहिए, कोई पर्सन हो, साउंड हो, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी ओनर बन सकते हैं आईपी के। जस्ट लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ आईपी, यू कैन असाइन इट, गिफ्ट इट, सेल इट, लाइसेंस इट। मोनोपोली राइट्स है, मतलब एक के पास है तो दूसरे के पास अपने आप नहीं होंगे। या तो जैसे आपका घर है, दो लोगों के या तो ज्वाइंट ऑनरशिप होगी, ऐसा नहीं है कि एक का हो गया तो कोई ही से भी कोई थर्ड पर्सन आके इस पे क्लेम कर सकता है। और सभी मेंबर कंट्रीज में आपस में ट्रेड के लिए, कमर्स के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज कोई कंट्री किसी और के साथ नहीं बिजनेस करेगी, क्योंकि बहुत R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है।
अगर किसी कंपनी को लगता है कि ये तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके या जुगाड़बाजी से आसानी से बना लेगा कहीं पे भी, जैसे हमारे यहाँ होता भी है, कई कई चीजें आराम से डुप्लीकेट मिल जाती है, तो उसका प्रॉफिट है वो तो ओरिजिनल कंपनी को नहीं गया, वो तो सब बट गया वहां पे। तो कौन करेगा, कौन इन्वेस्ट करेगा इतना पैसा, और फिर कैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करेगी? अल्टीमेटली पब्लिक ही लॉस में रहेगा। सो अभी एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा सभी फॉर्म ऑफ आईपी को समझते हैं और फिर कॉपीराइट को डिटेल में समझेंगे। पैटेंट्स तो बस नाम सुनते ही लगता है कि ये तो बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट का ही मतलब का है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, कोई प्रॉब्लम, चाहे ये पराली जलने की ही प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई सोल्यूशन निकालते हो तो आप पेटेंट आपको मिल सकता है। और एकेडमिक्स में फैकल्टी को, स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पंजाब में पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है, पंजाब स्टेट फॉर काउंसिल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो काफ़ी खर्चा भी वो उठाता है। पेटेंट एक तरह का कंट्रैक्ट होता है सोसाइटी के साथ 20 ईयर्स के लिए। उसमें आपने जो बनाया उसके बारे में सब कुछ डॉक्यूमेंट में बता दिया, और आपको ग्रांट जब पेटेंट हो गया, मतलब 20 ईयर्स के बाद अब इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक डोमेन में आएगा, वो लोग यूज़ करेगा, लेकिन 20 ईयर्स तक आपने जो भी प्रॉफिट अर्न करना है उसको कर लो। तो ये टेन्योर जो है ये फिक्स है, ये पूरे वर्ल्ड में फिक्स है। इनफैक्ट सभी आईपीआर के जितने फॉर्म्स हैं उनके फिक्स टेन्योर्स हैं, एक्सेप्ट ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इनका रिन्यूअल जो होता है वो 10 ईयर्स के लिए होता है, और प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के आप पेमेंट्स करके उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए कर सकते हो। अब पेटेंट किस तरह के इन्वेंशन को मिलता है? या तो कोई प्रोडक्ट होना चाहिए या कोई प्रोसेस होना चाहिए जो कि नॉवल हो, मतलब पहले किसी को नहीं पता, उसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप। अब नया तो डिफाइन करना बहुत इजी है, इन्वेंटिव स्टेप होना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल एडवांस, कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, और इंडस्ट्री में या वो बन सकता हो या वो इंडस्ट्री में यूज़ होता हो। तो ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं। अगर 3 क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट और प्रोसेस पे पेटेंट मिल सकता है। पेटेंट एक्ट डिफाइन भी करता है कि कुछ एक चीज़ें जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज है उस पर कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ बनाता है जिससे कि सोसाइटी के को हार्म पहुंचता है, उसको भी कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। इस तरह की इन्वेंशन को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। और ये भी पेटेंट एक्ट कहता है कि सिर्फ इन्वेंशन को ही पेटेंट मिलेगा, डिस्कवरीज को नहीं। यानी प्लांट एनिमल नया डिस्कवर करते हो उस पर कोई पेटेंट नहीं है। सो जो चीज़ नेचर में है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, बाकी आप खुद से उसमें इंटरवेन करके अगर कुछ बनाते हो तो वो पेटेंटेबल हो सकता है। अब मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज लाई हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि कैसे ये नॉर्मल कुछ लोगों को भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए। ये कुसुम राजा की स्टोरी है। उनके पास कोई वुमेन गए थे, रिस्पेक्टेड वुमेन, प्रेसिडेंट के वाइफ थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड शी आस्क्ड फॉर सिल्क वेराइटी। आपको मालूम है कि सिल्क कैसे बनता है? सिल्क के लिए जो कोकून होता है उसको उबलते हुए पानी में डाला जाता है और वो बेचारा वर्म उसमें मर जाता है, फिर उसके बाद उसको निकालते हैं, बिकॉज वो या नहीं तो थ्रेड ब्रेक हो जाता है। तो वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिल्क पहनना तो चाहते हैं, बहुत सुंदर लगता है सिल्क साड़ियाँ, बट क्रूअल मेथड के कारण वो सिल्क की साड़ियाँ नहीं पहन सकते। तो कुसुमा राजा ने देखा, वो एक नॉर्मल वर्कर थे वहाँ पे, उनको लगा कि मार्केट में बहुत डिमांड है, तो उन्होंने एक प्रोसेस बनाया जिसमें कि वो मूथ को उड़ने देते हैं और उसके बाद जो टूटा हुआ कोकून होता है उसके प्रोसेस करके वो फिर से वो सिल्क साड़ी बना सकते हैं। आप गूगल करके देखिएगा, आपको अहिंसा सिल्क नाम से वो अवेलेबल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट उनको ही गॉट अ पेटेंट ऑन दिस। ऐसे हमारे अपने हिसार में एक ये साइंटिस्ट है डॉक्टर गुलशन नारंग, उनको मिला है। अब यूरिया की कंटामिनेशन दूध में बहुत आम है, खासतौर पे फेस्टिवल सीजन में, तो उन्होंने क्या किया, एक किट बनाई है। किट में अगर आप किट में सारे इंस्ट्रक्शन दिए, छोटी सी किट है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आप उसमें आसानी से यूरिया को डिटेक्ट कर सकते हो मिल्क में। और एक सिंपल सी चीज़ है, बचपन में स्कूल में सभी को ज्योमेट्री मैथ से बहुत डर लगता है, बहुत बच्चे होते हैं जिनको समझने में बहुत दिक्कत होती है। ये चीज़ मिस्टर गुरमीत सिंह, स्कूल टीचर हैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने रियलाइज़ की
और उन्होंने ज्योमेट्री की थ्योरम्स को समझने के लिए सिंपल डिवाइसेस बनाए। और ऑब्वियसली वो प्रोटोटाइप होता है। फिर उसके बाद उन्होंने टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप भी किया, जिन्होंने उसको काफ़ी और अट्रैक्टिव बना के प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने आसपास ये प्रॉब्लम देखी कि ज्योमेट्री के थ्योरम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, और उसको समझने के लिए उन्होंने बड़े अच्छे कुछ डिवाइसेस बनाए, और इस पे उनको भी पैटेंट मिला। सो पैटेंट के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइंस वालों का या साइंटिस्ट का मतलब है। कोई भी आम व्यक्ति अपने आसपास कोई प्रॉब्लम देखता है, समझता है, उसको वो सॉल्व करता है, तो वो सोल्यूशन पैटेंटेबल हो सकता है। हमारे यहाँ जिसको जुगाड़ बोलते हैं, आपको क्या मालूम कि वो जुगाड़ जो है वो इस क्राइटेरिया में फुलफिल हो। गवर्नमेंट की तरफ हेल्प की जा रहे हैं, पूरा सपोर्ट किया जाता है ऐसे व्यक्ति को पहचान के, और लोग भी अब धीरे धीरे काफी मीडिया के कारण अवेयर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग केसेस आते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि सारे पेटेंटेबल हो, बट पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही बेसिक एक आप करते हो, और प्रोडक्ट को डेवलप करते हो तो आपको पैटेंट मिल सकता है। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन जो दूसरा कंसेप्ट आता है, प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट में तो ऐसे नहीं लॉन्च होगा, उसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। छोटी सी चीजें होती है, बच्चों के बिस्किट्स होते हैं, टेस्ट तो वही रहेगा, लेकिन उसकी अपीयरेंस कितनी मैटर करती है किसी भी चीज की। आपको अपने घर टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, आपको मोबाइल फोन लेना, अपीयरेंस मैटर करती है ना सबके लिए। सबको लगता है कि बहुत सुंदर एक फैंसी सी आइटम हो। अब ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, वॉश बेसिन की है, सबने हाथ ही धोने हैं, आपने कुछ नहीं करना हो, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट उठा के आप उसको अपने 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 घर में लगाना पसंद करोगे? मान लीजिए सबकी कॉस्ट सेम है और कॉस्ट कोई मैटर नहीं कर रहा, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसकी ओवरऑल एस्थेटिक अपीयरेंस को। 2D स्ट्रक्चर भी हो सकता है, 3D स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट की ऑर्नामेंटेशन को इंडस्ट्रियल डिजाइन में हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इसका टोटल टेन्योर 15 ईयर्स होता है। एक बार अप्लाई करते हैं तो 10 ईयर्स मिलता है, उसके बाद आप 5 ईयर्स के लिए और मैक्सिमम प्रोटेक्शन ले सकते हो। उसके बाद पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन का मतलब है आप कोई भी यूज कर सकते हो, उस पर कोई कॉपी पेस्ट जैसा नहीं है। ट्रेडमार्क तो अब सब टाटा, ब्रिटानिया, एचपी, मैकडोनल्ड, पिज्जा, लैक्मे, रेवलॉन, सो ये एक डिस्टिंक्टिव वर्ड, लेटर या न्यूमरल है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट के ओरिजिन का पता चलता है, राइट? वो प्रोडक्ट कौन बना रहा है, और उस प्रोडक्ट के ओरिजिन के साथ साथ उस प्रोडक्ट के एसोसिएटेड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे मैकडोनल्ड में आपको जो बर्गर मिलेगा उसका जो टेस्ट है, लेआउट है पूरा फर्नीचर का, इवन सॉस जो होगी वो कहीं पे भी आप चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ या आप लुधियाना में खा लो, बठिंडा में खा लो, सेम ही रहेगा। सो ट्रेडमार्क से आप आइडेंटिफाई करते हो, और ऑफ कोर्स कंपनी बहुत एफर्ट करते हैं क्योंकि ट्रेडमार्क की बहुत वैल्यू है, करोड़ों अरबों में होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि नाम से बहुत कुछ इनका बिकता है। चाहे नॉर्मल पब्लिक जो मर्जी कहे कि नाम में कुछ नहीं रखा, बट एक कंपनी के नाम में ही सब कुछ रखा है, बिकॉज खाली नेम को भी अगर वो मार्केट में सेल करने जाते हैं तो दे कैन अर्न करोड़ ऑफ रुपीज, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज। इट ऑफ कोर्स इट डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, और इसीलिए ये अपनी ब्रांड वैल्यू को मेंटेन भी रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जो चीप डुप्लीकेट्स होते हैं, जिसको हम लोग पासिंग ऑफ बोलते हैं, कि थोड़ा सा स्पेल चेंज कर देंगे बट ओवरऑल डिजाइन वो सब कुछ वैसे ही रखेंगे। और किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए हम लोग भी धोखा खा जाते हैं उसको पहचानने में, और उसको हम लोग परचेज करते हैं, जब क्वालिटी नहीं मिलती फिर देखते हैं ध्यान से। तो ये कंपनीज के पास अपनी इसकी रेमेडीज होती हैं। अगर उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन जाती है तो दे ऑब्वियसली दे फाइल फॉर फिर फाइल इन द कोर्ट, और इस तरह के बनाने वाले को, बेचने वाले को, सबको ये एक ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, सबको इकोनॉमिक डैमेजेस भरने पड़ते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनीज बनाती हैं, इंडस्ट्रीज बनाती हैं, पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है उसमें जो लोग बनाते हैं वो बुनकर, कारीगर टाइप के लोग होते हैं, जो कि उनका कल्चर है। जैसे आप पंजाब की बात करते हैं तो फुलकारी है, हमारा
डा मिठाई और ऐसी पंजाबी जूती, बहुत सारी आइडेंटिटीज है, लेकिन फुलकारी जो है अभी हमारी रजिस्टर हो चुकी है। बहुत सारी और चीज़ों का भी रजिस्ट्रेशन बाकी पूरा प्रोसेस है। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है कि जो ग्रुप ऑफ लोग मिलके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट का कोई स्पेशल टेस्ट, कुछ स्पेशलिटी है, बिकॉज वो उसी जगह पे ही आपको मिलेगी, वो एक क्वालिटी और ओरिजिन को डिनोट करती है। ये गोवा की फैनी है, चाय सिल्क की एन नंबर ऑफ वेराइटीज हैं, नागपुरी ऑरेंज है, आर्ट है हमारे वर्ली आर्ट है, स्पेशल टाइप ऑफ लॉक्स हैं। सो हमारी अपना जो कंट्री है वो तो बहुत रिच है ट्रेडिशंस में, हेरिटेज में। कॉटन और सिल्क की साड़ियों की ही बहुत एन नंबर ऑफ वेराइटी। पेंटिंग का अगर आप स्टाइल का बात करें तो वर्ली आर्ट है और इस तरह के और थोड़े बहुत सारे और आर्ट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। उसमें ब्रश का स्टॉक, जो मोटिव्स हैं बनाए जाते हैं, कलर्स जो लिए जाते हैं, वो बड़े यूनिक होते हैं। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वहाँ के लोगों के कल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑफकोर्स इसका भी अपना पूरा रजिस्टर और लोगों को मिलके, बहुत सारे इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग मिलके ग्रुप की तरह भी एज अ प्रोड्यूसर अप्लाई कर सकते हैं और उनको मिलता है। सो इससे काउंटरफेट जो प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में अवेलेबल है उसको रोकने में हेल्प मिलती है। बिकॉज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे फुलकारी कढ़ाई का पता है, बट जो साउथ में बैठा है उसको नहीं पता होगा। मुझे अगर वहां का कोई कांजीवरम खरीदना है तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा? जीआई की हेल्प। और वो नेम जो है सिर्फ वही यूज कर सकता है जो कि उसमें रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर होगा। और रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर कौन होगा? जो कि एक्चुअल में सही प्रोडक्ट बना रहा है। सो हमने ये थोड़ा थोड़ा समझा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है हमारे राइट्स है, हमारे इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी में। और अब हमने ये भी समझ लिया कि पेटेंट भी कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, किसी को भी मिल सकता है। आपको प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाना है, सभी के लिए रेलेवेंट है, बच्चे के लिए भी रेलेवेंट है। 4 साल के छोटे बच्चे को भी पेटेंट मिला हुआ है, जिसको दरवाजा खोलने में दिक्कत होती थी तो उसने एक लॉन्ग सा बड़ा एक नॉब बनाया और उससे दरवाजा उसको हेल्प मिली, तो उसने एक प्रोडक्ट डेवलप किया। ये डिश वॉशर की अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो डिश वॉशर मशीन एक हाउसवाइफ ने बनाई थी, वो बहुत लंबी एक स्टोरी है, उस जमाने की बात है। ये यूएसपीटीओ ने पूरा एक पेज काफी दिनों तक उनके लिए रखा था, मुझे नाम स्लिप आउट हो रहा है। सो वो लेडी थे और वो काफी उनका इंजीनियरिंग बेंट ऑफ माइंड था, बट ऑब्वियसली उस समय लेडीज में नहीं एक्सेप्ट किया जाता था मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग गुण। काफी रिच फैमिली को बिलोंग करती थी और उनके पास बहुत सुंदर क्रॉकरी हुआ करती थी जो कि उनकी मेड्स अक्सर तोड़ देती थे। तो वो एक्सपेंसिव भी थी और उनको अपनी क्रॉकरी से बहुत प्यार था। सो उन्होंने खुद ही एक मशीन जैसा कुछ बनाया अपने घर के लिए क्रॉकरी को धोने के लिए। बाद में कुछ रिसेशन हुआ, उनके हस्बैंड को बिजनेस में बहुत लॉस हुए, तो उन्होंने इसको और कुछ प्रोटोटाइप बना के रेस्टोरेंट्स को कंटैक्ट किया और उसके बाद अपने काफ़ी प्रोडक्ट्स बेचे और उनको पेटेंट भी ऑफ कोर्स उन्होंने अप्लाई किया था और प्रोडक्ट से उन्होंने काफ़ी अर्न किया। तो जो अभी आप जो डिश वॉशर देखते हो ये बेसिकली इम्प्रूव्ड वर्जन है और ऑब्वियसली उसका 20 ईयर्स का टाइम पीरियड हो गया, अब उस पर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बट नया टेक्नोलॉजी लाता है तो उसको भी अलग पेटेंट मिलेगा। बट इसका ओरिजिन इसी तरह से हुआ था। हाउसवाइफ है, बहुत सारे रोज के बर्तन होते हैं क्योंकि बहुत गेस्ट आते थे, टूट जाते थे, तो उनके लिए प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन उन्होंने इस तरह से निकाला। सो हमने अब ये भी समझा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिकता है तो उसकी एस्थेटिक अपीयरेंस होनी जरूरी है और एस्थेटिक अपीयरेंस में भी जो आपका इंटेलेक्ट लगता है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि प्रोडक्ट को मार्केट में जब बेचते हैं तो उसका एक ट्रेड नेम रहता है और उस ट्रेड नेम को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रीज के अलावा प्रोड्यूसर्स भी जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, जो कारीगर और बुनकर हैं और उनका इंटेलेक्ट उनकी फाइनेंस में है, जितनी फाइनेंस से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो भी अपने प्रोडक्ट के नाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से। तो ये सारा कुछ समझने के बाद अब हम लोग कॉपीराइट पे आएंगे और इसको थोड़ा सा और समझेंगे। अब कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी लिटरेली, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क है, उस पे आपको कॉपीराइट मिल सकता है।
और इस राइट में आपको क्या मिल रहा है? राइट ऑफ रिप्रोडक्शन। आप दोबारा उसको कैसे यूज करते हो, आप कैसे पब्लिक में कम्युनिकेट करते हो, लिखते हो, उसको पढ़ रहे हो, कैसे अडेप्ट किया जाता है। जैसे नॉवल है, नॉवल से मूवी बना दी, पोएम बना दी। और ट्रांसलेशन, हिंदी में है उसको इंग्लिश में किया, पंजाबी में किया। तो जिसके पास कॉपीराइट है वो सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर उसके मटेरियल को यूज करता है तो उसको पहले जाके उसके परमिशन लेना पड़ेगा। नाउ किस तरह का जो काम है वो प्रोटेक्ट होता है? ओरिजिनल वर्क, इंडिपेंडेंटली। अब आप लोग जितने भी हो, अगर आप लोग सब एक एक कोई पेंटिंग बनाते हो जो बहुत सिंपल बोलते हैं ना, सब लोग पहाड़, नदियां, पेड़, घर, वो सब बनाते हैं, सबका यूनिक होगा। और एक्चुअली सबको अपने अपने उस प्रोडक्ट में एक कॉपीराइट होगा। लेकिन हमारी तो चलो पेंटिंग की कोई इतनी नहीं इकोनॉमिक वैल्यू है, बट आप लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में बिकती हैं। तो जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं और उसकी के लिए लॉ का रहना जरूरी है। कुछ काम जैसे टाइटल, नेम, आप कंटेंट, रेसिपी की कंटेंट्स लिखते हो, उस पर कोई कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसे आइडिया, सिर्फ आइडिया ले लिया, कंसेप्ट ले लिया, प्रिंसिपल है, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं मिलता है। कॉपीराइट ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है, आपने बनाया आपको मिल जाएगा। पब्लिकेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, पैटेंट के लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए चाहिए, आपको ट्रेडमार्क के लिए भी नहीं चाहिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए भी मैंडेटरी नहीं है, बट अभी सभी के लिए बोलते हैं रजिस्ट्रेशन रखो। आप प्रूफ कैसे करोगे? आपने अगर एक प्रोडक्ट, आपने एक डिजाइन बनाया, आपने एक ड्राइंग बनाई, आप उसको नहीं बना, आप प्रूव कर पाओगे कोर्ट में? अगर कोई और उसको डुप्लीकेट करता है, आपने एक स्टोरी लिखी, आप कैसे प्रूव करोगे? रजिस्ट्रेशन कराना हमेशा एडवाइस होता है, इजी होता है कोर्ट में प्रूव करना। रजिस्ट्रेशन का मेथड इसका बहुत सिंपल है। 1957 के एक्ट में प्रिस्क्राइब में फॉर्म नंबर 4 है, उसमें आपका दिया जाता है कि आपका कौन सी लैंग्वेज में है, इसका नेचर क्या है, मतलब पोयम है, नॉवल है, या और क्या है, और उसकी एक प्रिस्क्राइब फीस होती है, नेक्शन उसमें दिया रहता है, वो आपको उसमें भरना है। कॉपीराइट का जो ऑफिस है वो द्वारका में, न्यू दिल्ली में है। ऑनलाइन भी वो एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन, सब फॉर्मेलिटी चेक करके आपको एक सर्टिफिकेट आ जाता है और ग्रांट हो जाता है। ग्रांट होने के बाद टर्म जो है कॉपीराइट का वो फिक्स्ड है। किसी भी काम के लिए, आर्टिस्टिक वर्क के लिए, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, पूरी जिंदगी आपको मिलेगा कॉपीराइट। और उसके बाद मरने के बाद 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाइज। तो 60 ईयर्स जो है आपको वो पूरा का पूरा कॉपीराइट मिलेगा। मतलब आप और आपके बाद जो भी लोग उसको इनहेरिट, आपकी फैमिली भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, कोई भी। ब्रॉडकास्ट किसी जैसे अभी ये एक आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, मेरी प्रेजेंटेशन है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, उसकी 25 ईयर्स तक रहता है कॉपीराइट ऑथर का, जो उसको बना रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स हैं ये कि कैसे जब टेन्योर हो जाता है तो वो बाहर आएगा। आपने देखा होगा कि मूवीज जैसे ओमकारा है, 2 स्टेट्स है, तो ये मूवीज जो बनाई जाती हैं इनके स्टार्ट में आप देखोगे हमेशा साइट किया जाता है कि ये दिस इज बेस्ड ऑन द नॉवल ऑफ शेक्सपियर, चेतन भगत, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनके भी स्टोरी के ऊपर वो मूवी बनाई है उसको क्रेडिट दिया जाता है। कॉपीराइट तो अपने टेन्योर के बाद खत्म हो जाएगा, पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। अगर कॉपीराइट का पीरियड चल रहा है तो जिसके भी कॉपीराइट है, जैसे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो भी काम था उसका कॉपीराइट विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल में उनके पास था। तो जिसको भी उनका कोई काम यूज करना होता था तो वो उनसे परमिशन लेते थे, और कोई भी उनका पोयम, सॉन्ग, प्ले, कुछ भी हो गया, उसको कैसे भी यूज कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, और उसमें विश्व भारती यूनिवर्सिटी को काफी अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती थी। तो उसका एक्चुअली बोलते हैं कि सारा जो खर्चा था यूनिवर्सिटी का आराम से उनके ही रॉयल्टी से चल जाता था। बट 2001 के बाद वो अभी पब्लिक डोमेन में, तो यूज कोई भी कर सकता है, बट उसको साइट करना पड़ेगा। उनकी पैटर्निटी राइट हमेशा उनके पास रहेगा। देखिए कॉपीराइट में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, टेन्योर फिक्स्ड है, टेन्योर फिक्स होने के बाद वो पब्लिक डोमेन में यूज कर सकते हो। बट कॉपीराइट से जुड़े हुए 2 राइट्स हैं जो कि हमेशा ही ऑथर के साथ रहेंगे, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता। एक है पैटर्निटी राइट,
जो नॉवल उनका है वो उनका ही रहेगा। अगर आपने उस पर कुछ भी करना है आपको हमेशा क्रेडिट देना पड़ेगा। दिस इज बेस्ड ऑन दी नॉवल स्टोरी ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर, और नाम भी लिखोगे। दिस इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर वर्क, दिस सारा आपको देना है। और दूसरा राइट है मोरालिटी राइट। वो क्या बोलते हैं कि कोई भी, अगर आपने लाइसेंस भी दे दिया काम करने का, तो काम करते वक्त आपकी रेपुटेशन खराब हो इस तरह का वो कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपकी रेपुटेशन उसके काम करने के तरीके से खराब होती है तो यू हैव द राइट, बिना किसी इकोनॉमिक डैमेज के आप उसको लाइसेंस कैंसिल करके वापस ले सकते हो। ऐसे ही 2009 तक महात्मा गांधी जी के जो भी काम थे उसका कॉपीराइट नवजीवन ट्रस्ट के पास था, अभी वो भी पब्लिक डोमेन में। सो फिक्स टेन्योर हर किसी के काम का है, काम होने के बाद, वो टेन्योर होने के बाद वो पब्लिक यूज कर सकते। उससे पहले जिसके पास राइट है उससे परमिशन लेनी होगी, और ऑब्वियसली वो कोई ना कोई रॉयल्टी लेकर आपको परमिशन देंगे, और उसके बाद भी आपको साइट करना है, क्योंकि पैटर्निटी राइट हमेशा रहेगा, और दूसरा मोरालिटी राइट जो बोलते हैं वो हमेशा रहेगा कि इनकी रैपोर्ट डैमेज होती होगी, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। कोई भी वायलेट करता है कॉपीराइट को तो रेमेडीज हैं, इसको सिविल में सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज इसको ऑफेंस माने जाते हैं। मतलब आपको जेल भी हो सकती है, इकोनॉमिक डैमेजेस भी देने होंगे, और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी लिए जाते हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट। अब इसमें ना मैं कुछ फेमस केसेस आपको बता रही हूँ, और ये फेमस केसेस तो क्योंकि बॉलीवुड के हैं और वर्ल्ड वाइड काफ़ी पब्लिसिटी होती है इनकी, पर बहुत सारे इनफेमस केसेस भी हैं। हम फेमस केस के बाद इनफेमस केसेस को भी थोड़ा सा मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट हैं और फैकल्टी हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फेमस केस है, आप फोटोग्राफी करते हैं, आपने बनाया तो कॉपीराइट आपका है। अब ये एक केस क्या है, ये कुछ 2008 के आसपास एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, और ब्रिटिश नेचर फोटोग्राफर डेविड इंडोनेशिया गए, और वहाँ पे ये इंडेंजर स्पीशीज है मकाका की, इस पे उन्होंने काफ़ी काम किया। काम करते हुए ये कुछ वहाँ के मकाका की फोटोग्राफ्स ली गई। अब फोटोग्राफ्स ली गई, इसकी बहुत सारी अलग स्टोरीज हैं, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। उनका जो उनका खर्चा चलता था, जो उनके पैसे आते थे, वो इन्हीं फोटोग्राफ्स को बेच कर आते, तो इसको उन्होंने आगे बुक्स में और कई जगह पे दिया। स्टोरी क्या है कि इनका ये क्लेम है कि मैंने कई दिनों तक जाके, बिकॉज ये सोशल एनिमल्स हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स को पास नहीं आने देते, तो मैं भी इनके साथ, मैंने कैमरा ट्राइपॉड अपना उस तरह से सेटअप किया, और ये जो डोमिनेंट उस ग्रुप में था वो आया और उसने फोटोग्राफ्स लिए। सो मैंने ही सारा कुछ सिस्टम जो था वो डिज़ाइन किया, और ये फोटोग्राफ मेरे थ्रू लिया गया, तो मेरा कॉपीराइट बनता है। वो यूज़ भी कर रहे थे फोटोग्राफ्स को, और ये तब तक हुआ, कुछ साल के बाद उन्होंने देखा 2011 में कहीं विकिपीडिया कॉमन्स में ये सारी फोटोग्राफ्स अवेलेबल, और सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि सब लोग फ्रीली यूज़ कर रहे थे तो ऑब्वियसली उनके पास पैसे नहीं आ रहे थे, और फिर वो गए, उन्होंने वहाँ पे केस किया, और फिर केस जब किया तो अब बिकॉज एनिमल था तो पैटा वाले भी आ गए, पीपल फॉर एनिमल एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये केस काफ़ी लंबा चला, और अल्टीमेटली खैर कोर्ट ने यही डिसीजन दिया। इसमें ये एप को नारुतो करके एक नाम भी मिल गया था, डेविड वर्सेस नारुतो नाम से आपको ये केस मिल भी जाएगा, कि ये बाकी कई लोगों ने ये परसेप्शन देने की कोशिश की कि ये लोगों की टीम पे मकाका ने अटैक किया होगा और वो लोग भाग गए, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में इन्होंने उठाया और फोटोग्राफ्स क्लिक की। अब एक्चुअल में क्या हुआ वहां पे ये तो कोई नहीं जानता, या तो ये मकाका जानता होगा या वो डेविड जानता होगा, तो किसकी बात पे भरोसा करे। बट अल्टीमेटली क्लिक तो इसी ने किया, ये सबको मालूम है, इसीलिए इतना क्लोजअप्स आए हैं। क्लिक इसने किया है, सेल्फी लिए, अब आपकी सेल्फी पे कॉपीराइट आपका है, तो जब आपका है तो फिर इस मकाका का डेविड का भी सॉरी मोरक्को का भी होना चाहिए। सो अल्टीमेटली खैर ये केस इस तरह से डिसाइड हुआ था कि एनिमल्स के ऑनरशिप नहीं हो सकती है आईपीआर की, तो ये कॉपीराइट जो है
ये डेविड को जाएगा। काफी खैर ये कॉपीराइट किसको जाएगा ये काफी साल चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली इसमें कुछ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी। इसमें पेटा के साथ भी हुआ कि यहाँ से जो भी उनको ये फोटोग्राफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री भी बाद में बनाई गई इस पूरे केस पे, जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट मकाका रिहैबिलिटेशन के लिए यूज किया जाएगा। बट आप देखते हो मोरल्स, पेंटिंग्स, बहुत सारे हमारे कंट्री में भी एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है, वो बनाते हैं। अब जब कॉपीराइट बोल रहा है, ये एक्ट बोल रहा है कि जो क्रिएटर है जिसने बनाया उसका कॉपीराइट है, तो क्रिएटर कौन है ये कैसे डिफाइन होगा? बट केसेस के बाद ये डिफाइन हुआ। तो ये आपको बड़ा ये केस है इमेज कॉपीराइट का, नराटो वर्सेस डेविड का। ऐसे ही बॉलीवुड में बहुत केसेस होते हैं स्टोरी चुराने के, सॉन्ग्स के चुराने के। तो राकेश रोशन की भी एक मूवी आई थी क्रेजी 4, और उस पे ये एलिगेशन लगा था कि राम संपत ने क्लेम किया था कि मेरे टाइटल ट्रैक ये राइम्स बनाते थे, तो वहां से इस क्रेजी 4 के टाइटल सॉन्ग और कुछ और सॉन्ग्स की टोन चोरी की गई है। इसमें कुछ कंफ्यूजन था बिकॉज राम संपत ने एक्चुअली में ये जो टोन्स बनाए थे ये किसी मोबाइल फोन के रिंग टोन्स के लिए बनाए थे, और राकेश रोशन ने माना भी कि हमने वहां से इसको लिया है। सो बट कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में इस मूवी का रिलीज होना भी रोक दिया था, और अल्टीमेटली राकेश रोशन को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ी बिकॉज ये क्लियर कट केस ऑफ प्लेजरिज्म ही था। बट बिना उनकी परमिशन के उनका प्रोडक्ट यूज किया गया, बट वो डायरेक्ट नहीं था। उन्होंने आगे एक रिंगटोन कंपनी के लिए बनाया, रिंगटोन कंपनी से इन्होंने लिया। सो ये कई जो मिसकंसेप्शन होते हैं पब्लिक में, ये केस उसको भी क्लियर करता है। अल्टीमेटली राकेश रोशन को 2 करोड़ रुपए देके अपनी मूवी इनको रिलीज कराई, तो इस तरह से ये डैमेजेस इनको देने पड़े थे। मिसकंसेप्शंस क्या क्या है आम लोगों में? लोगों को लगते है, हमें लगता है कि वट एवर इज देयर ऑन द इंटरनेट आप उसको आराम से यूज कर सकते हो, आप ऑल्टर करते हो इमेज को, आप यूज कर सकते हो, आप इमेज को एज इट इज उठाते हो बिना परमिशन के और सोर्स बता रहे हो, तब भी मैं अपने किसी आगे काम में यूज कर सकता हूँ। इफ आई यूज ओनली अ पार्ट ऑफ द इमेज, मुझे तब कोई परमिशन नहीं चाहिए। पूरा तो मैंने नहीं उठाया, थोड़ा सा एक 20 सेंटीमीटर की उस पूरी पिक्चर में 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का ले लिया, तो मुझे परमिशन नहीं चाहिए या कॉपीराइट नोटिस नहीं है। देखिए किसी भी इस तरह के लिटरेरी वर्क पे अगर आर और सर्कल लिखा रहता है वो तो बहुत खतरनाक है, मतलब कॉपीराइट है और रजिस्टर्ड है। अगर सिर्फ सी भी लिखा हुआ है तो वो बोल रहे हैं कि कॉपीराइट है बट मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, जैसे आके आप बुक्स में देखते हो सी भी लिखा रहता है, आर भी लिखा रहता है, बट नहीं भी कुछ लिखा हुआ तब भी आप किसी के भी काम को अपना बना के नहीं यूज कर सकते हो, ना ही आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से ये रहता है कि अगर मैंने अलग अलग सोर्स से लिया, एडिट भी कर दिया, अब मुझे कोई परमिशन नहीं है, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। ऐसे कई जो केसेस जो आपको बोल रहे इनफेमस केसेस फैकल्टी से जुड़े हुए अनफॉर्चुनेटली बहुत आते रहते हैं, बट मैं उसका ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी बिकॉज दे आर रियली इनफेमस केसेस। रिव्यू पेपर है, रिव्यू से एज इट इज उठा के रिव्यू ऑफ चैप्टर कर दिया, आप साइट भी कर रहे हो। एक पेपर लिया आपने, पेपर से आपने पूरा का पूरा पेज कॉपी कर दिया, आपने उस पेपर को साइट भी कर दिया और आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही काम किया, तब भी आप एक्चुअली ये काम नहीं कर सकते। आप एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी नहीं कर सकते भले ही आप साइट कर रहे हो। सो आपको उसको लेके अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है। तो ये कुछ पॉपुलर कॉपीराइट मिथ्स रहते हैं। अगर आप लेते हो एज इट इज तो उसको प्लेजरिज्म कहते हैं, चीटिंग कहते हैं, डिसेप्शन कहते हैं। आप एक्चुअली अपना खुद का काम भी दोबारा नहीं यूज कर सकते। आप एक काम के लिए एक ही बार लिखा हुआ यूज कर सकते हो, उसके बाद उसको एज इट इज उठा के नहीं यूज कर सकते हो। ये सेल्फ प्लेजरिज्म का केस है। किसी की फिगर उठा के कर लेना, इनफैक्ट किसी की फोटो लेके आ जाना। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, कोई फूल पत्तों की भी फोटो चाहिए, क्यों इंटरनेट से लेते हो? अब तो बहुत इजी है, इतने आप लोगों के पास आराम से फोन में कैमरास लगे हैं, गो एंड क्लिक। जो चीज आपको चाहिए वो तो आपके आसपास है, आपको आराम से आपको क्लिक करके मिल सकता है। फिगर्स बनाने कोई मुश्किल नहीं है। आज की डेट में क्या मुश्किल है? लैपटॉप पे, पीसी पे काम करना कितना आसान है। कितने यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स है, जिनको आपको सॉफ्टवेयर को साइट करो और बनाओ, अपना काम खुद से करो। किसी से आप क्यों लेते हो? बिना परमिशन के लेते हो,
वो भी गलत है। और बिना एक्नॉलेज किए लेते हो सोर्स से, ये तो बहुत ही खराब है, ये तो प्लेजरिज्म है जिसमें कहीं से भी कोई माफी नहीं है। अब प्लेजरिज्म और फेयर यूज में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। किसी और के आइडिया को अपने आइडिया की तरह बनाना, उसको प्रेजेंट करना, एज इट इज उठाना या पुअरली पैराफ्रेजिंग करना, ये सब प्लेजरिज्म है। बट कॉपीराइट एक्ट कुछ चीज़ों की हमें परमिशन भी देता है, जैसे क्लास के लिए आप पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, जहां पे भी आप कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं उठा रहे हो। न्यूज रिपोर्टर्स हैं, आपने क्रिटिसिज्म करना है, आपने रिव्यू लिखना है, आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हो, पर आपको साइट भी करना है। ठीक है, आप जैसे रिव्यू करते हो लिटरेचर का, पेपर लिखते हो, प्रोजेक्ट्स लिखते हैं बच्चे, तो या तो वो खुद से लिखेंगे, और जहाँ से वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का चैप्टर बनाते हैं, रिव्यू करते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं, तो हम जहाँ से भी लेते हैं एक एज इट इज नहीं उठाना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, अपनी अपनी लैंग्वेज में उस पेपर को समझ के करने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये लैपटॉप और पीसी का नुकसान है कॉपी पेस्ट। ये करना सबको बहुत आसान लगता है। पहले के टाइम में बैठते थे क्योंकि टाइपिंग करना पड़ता था या खुद किसी से करवाते थे तो बड़ा मुश्किल लगता था, तो ऑब्वियसली सब स्कॉलर्स उसको समझते थे, उसको अपने हाथ से लिखते थे, सिंपल लैंग्वेज करते थे और बाद में उसकी टाइपिंग होती थी। अभी कॉपी पेस्ट में ही चीज़ें आसान भी हो गई, बट पकड़ना भी बहुत आसान हो गया। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, इंडिया में भी साइंटिस्ट और बहुत रेपुटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट, इमटेक के, आईआईटीज के पेपर्स पकड़े गए हैं। पबगी करके कुछ एक सॉफ्टवेयर है जो कि फोटोग्राफ्स की डुप्लीकेशंस को पकड़ लेता है। 2012, 20 साल बाद, 10 साल के बाद सेम फोटोग्राफ आपने डुप्लीकेट किया, वो उसको भी पकड़ लेगा। आपने एक पार्ट छोटा सा लेके उसको डुप्लीकेट किया, उसको भी वो पकड़ लेगा। और आपने पेपर का पेपर पूरा कहीं से या कुछ पैराग्राफ या सेंटेंस कॉपी किया, उसमें डालो और वो आपको एज इट इज सोर्स बता देगा। सो ये चीज़ें अगर आसान थी तो उसको पकड़ने के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, और करियर प्रोग्रेशन में ये बहुत खतरनाक है। ये स्टूडेंट लाइफ में समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जब स्टूडेंट थे हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कॉपीराइट क्या है, कैसे हमें करना है। बट आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन है, सब लोग आपस में बिजनेस करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ये जो बहुत स्कीम्स है, जिसमें एक स्कीम में मुझे भी फेलोशिप मिली थी, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम में, डीएसटी की, स्पेशल ट्रेन किया जा रहा है, बनाए जाते हैं, और हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि आज आपका यंग टाइम है, आपका किया हुआ कुछ भी ऐसा गलत काम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं जो कि आपके करियर पे थ्रू आउट आपको इफेक्ट डाल सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन तो उसमें से सबसे एक बहुत ही खराब चीज़ है। अब ये देखिए, मैं ये एक लेकर आई हूँ, ये एक केस था रॉगर्स वर्सेस कॉन का। इसमें क्या था, रॉगर जो थे वो एक सिंपल फोटोग्राफर थे, और आर्ट रॉगर था उनका नाम, और उन्होंने दो लोगों को बिठा के फोटोग्राफ की, और ये जो फोटोग्राफ्स थी वो अपने बाकी फोटोग्राफ्स की तरह मर्चेंडाइज में, कार्ड्स में, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में वो बेचते थे। ठीक है, अब आपने ये देखा, अब किसी ने क्या किया, किसी के पास ये कॉन्स थे, जेल कॉन्स, उनके पास, उनको कहीं से ये पिक्चर वाला पोस्ट कार्ड मिल गया। उन्होंने इसको, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की, स्कल्पचर्स बनाए, और 2-3 स्कल्पचर्स जो थे वो कुछ $160,000 में उन्होंने बेचे। तो ह्यूज अमाउंट उन्होंने किया। अब देखो क्या चेंजेस किए उन्होंने, मीडियम चेंज हुआ, पोस्ट कार्ड से स्कल्पचर बनाया। अब देखिए, ओरिजिनल फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट है, उससे उसको कलर्ड बनाया। और अब अगर ध्यान से देखोगे, ये दोनों लोगों के कान में फ्लावर्स लगा दिए, थोड़ा थोड़ा अपीयरेंस चेंज किया। नोज अगर आप देखोगे इन पपीज की, इसको बहुत हाईलाइट किया, राइट, सो कलर चेंजेस किया। बट कोई भी लेमैन आप इसको देख के बता सकते, जिसने वो पहले वाला देखा है, कि ये जो है ये इंजीनियर्ड है, इसमें इसको बोलते हैं, एक टर्म लिया जाता है कैच फ्रेज और हुक फ्रेज, कि आपने अगर पहले का गाना सुना है, पहले की फोटोग्राफ देखी है, तो जो भी कोई इसको मॉडिफाई करेगा आप देखते ही उसको पहचान लोगे। कैच फ्रेज और हुक फ्रेज बोला जाता है, जिसका मतलब है विच बेसिकली reminds you something which you have earlier saw or you have listened to it. So इस केस में जो कॉन्स ने फेयर यूज का भी, जो अभी हम बात कर रहे थे, प्लेजरिज्म है और उसमें कुछ हमें कॉपीराइट एक्ट परमिशन देता है
जिसमें आप यूज कर सकते हो, बट कोर्ट ने इसको ये कहीं से भी फेयर यूज नहीं है। मीडियम चेंज करके आपने तो बेचा और बहुत कुछ पैसे कमाए हैं, सिर्फ नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल रिसर्च पर्पस के लिए कुछ पार्ट आप उसको आप यूज कर सकते हो। सो इसमें उनको काफी इकोनॉमिक डैमेजेस देने पड़े थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये ओरिजिनल आर्ट है और ये एफपीजी फोटोग्राफर कंपनी है, उसमें जेम्स फोटोग्राफर के नाम एफपीजी जो थे उन्होंने क्या किया, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ उनकी थी, उन्होंने मल्टीपल तरीके से अब ये फोटोग्राफ्स ली, कट किया, कॉपी किया, उसको पार्ट किया, घुमाया और उससे इसको बिल्कुल नया कवर पेज बनाया न्यूज डे का। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे क्या किया, ये दो इंडिविजुअल्स है, इनके यहाँ पे मुंह पे घड़ी है, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, स्क्रीन बना दिया आइस, और देखो इसके बैकग्राउंड में इस तरह की कुछ और फोटो थी, उसको बना के ये कर दिया और डायरेक्शन तक चेंज कर दी। देखिए ओरिजिनल फोटोग्राफ्स में ये कहाँ जा रहे दोनों इंडिविजुअल, राइट, और इसको काट के छोटे छोटे पीसेस में इसको मल्टीपल तरीके से घुमा के, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर की हेल्प से लेकर बिल्कुल इसको नया बनाया। अब इस केस में भी फिर क्या हुआ, न्यूज डेज ने एक्चुअली सिंपली कॉपी नहीं किया था एफपीजी की इमेज को, बट यहाँ पे कट आउट पीसेस दिए, उसको कंबाइन करके अलग अलग तरीके से एक बिल्कुल नया पिक्चर दिया, बट no permission was taken. So this is considered to be an unauthorized use. और ये केस भी जब कोर्ट में गया था, इनफैक्ट न्यू डेज was not even aware उसके एम्प्लॉय ने ऐसा किया, तो रेडली उसने डैमेजेस भी दिए थे अपनी रैपअप बचाने के लिए। अब इसमें देखिए गलती एम्प्लॉयर की है, पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इसमें भुगतना पड़ता है। सो इस तरह के ये केसेस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर आप मीडियम को चेंज करते हो, अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करते हो, काफ़ी चीज़ें कट पेस्ट करके या उसको एक ओरिजिनल लेके आप उसको अलग तरीके से मॉडिफाई करके बना रहे हो, तो आपको परमिशन मिला है। ये भी अनऑथराइज्ड यूज़ की कैटेगरी में ही आता है। तो सिमिलरली इसी तरह से जो हम लोग तो जो पेपर्स लिखते हैं या फिगर्स बनाते हैं, बच्चे रिपोर्ट्स में लेकर आते हैं, बी वेरी पर्टिकुलर कि वो बच्चों ने खुद ही बनाए हों। अब ऑनलाइन के टाइम में अगर आप श्योर नहीं हो, सो आई प्रेफर टू टेक, बिकॉज हर चीज को आप आइडेंटिफाई भी नहीं करते, उनसे एक सर्टिफिकेट लो, तो वो सर्टिफिकेट साइन करते हैं कि ये फोटोग्राफ या ये फिगर्स जो है मैंने खुद बनाया है, तो बनाते टाइम उनका कॉन्शियस कहीं तो रहेगा। और स्टूडेंट्स को अवेयर करना सबसे पहला हमारा फर्ज है। स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, वो इस तरह की मिसकंसेप्शंस में रहते हैं, तो ये हमारा फर्ज है उनको बताना कि आप किसी ओरिजिनल चीज को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, दे आर वेरी क्रिएटिव। एक बार उनको बता देंगे तो वो खुद से बहुत कुछ अच्छा, और जो देखते हैं उसको आइडिया आप ले सकते हो, मल्टीपल सोर्सेज से आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन उसके बाद एंड प्रोडक्ट आपको खुद ही बनाना है। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा आउटपुट लेकर आते हैं, सिर्फ उनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको बताने की ज़रूरत होती है सही और गलत। सो ये हमारे अपने कॉपीराइट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसकी वेबसाइट है, उसका स्नैपशॉट है। किसी को भी अगर डिटेल जाना है copyright.gov.in पे जाके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिंक पे जाके वो क्लिक कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो हमारे लेक्चर का जो थीम है, जो मैं सिर्फ 2 वर्ड्स में है कि यू रिस्पेक्ट कॉपीराइट, यू अंडरस्टैंड आईपी, यू रिस्पेक्ट कॉपीराइट, यू नीड टू बी केयरफुल, you need to be creative, right? So respect copyright. Thank you very much. Thank you very much for patiently listening to me. I think I tried at my level best to make it as simple as possible, because until unless आप लोगों को समझ नहीं आएगा, basic concepts बहुत simple है, तो उसका कुछ इतना मतलब नहीं होता। तो thank you so much. हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। प्रोफेसर वरिंदर, ओवर टू यू। मुझे लगा आप Okay. नहीं देखो। Right. Ma'am, there is a question for you. जी। The question is from Nancy Gupta.
जी Indian Constitution has borrowed liberty, equality, fraternity from the French constitutions for our preamble. Isn't of intellectual property right? नहीं, Kindly ये throw नहीं a light on this question. हाँ बच्चे, पहली बात तो ये जो टर्म्स लिए गए ना थोड़े थोड़े, ये कंसेप्ट है, बेसिक सोशल कंसेप्ट है, ठीक है, आइडियाज है किसी सोसाइटी के, और लेते टाइम सोर्स बताते हैं। जैसे हम लोग पॉलिसीज पे काम करते हैं, कोई भी पॉलिसी कभी नया से नहीं आता, हर पॉलिसी के लिए एक कहीं ना कहीं से एक बैकग्राउंड रहता है। सो आप वो बैकग्राउंड को बताते हो, और इसमें टर्मिनोलॉजी जो है वो तो सेम ही रहेगी। सोशल, अगर हम बात करते हैं सोशल किसी टर्मिनोलॉजी की, तो वो तो वही रहेगा, राइट? मतलब कि सोर्स बताना जरूरी है और क्रेडिट देना जरूरी है। अगर दिया गया है तभी आपको पता चला है कि ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जी आई थिंक इट्स क्लियर। सो बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मैम, कमेंडेबल, इंसाइटफुल, वैल्यूएबल, इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग एंड सिंप्लीफाइड, कंसाइज, इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं डॉक्टर प्रीति। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, दैट्स एनीवन माय एल्स प्लेजर। कोई और पूछना चाहता है? देखो इतने सिंपल कंसेप्ट में जो आपने समझाया, मैंने इतना सिंपल कभी भी ऐसा लेक्चर अटेंड नहीं किया। आई ऑल्सो एंजॉयड अ लॉट। मुझे होप है कि बाकी सब लोगों ने भी काफी एंजॉय किया होगा। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? थैंक यू Anyone मैम, else? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जब तक हम कोई भी कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में जाके आम लोगों को नहीं समझा पाते, तब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल राइट, राइटली सेड। I would like to ask a question, ma'am. जी बताइए। Ma'am, this is Sure. Professor Bangera Rupinder Kaur, and my question is, for how long does this copyright last for? And most importantly, how does it affect positively to the generation? Does it is it helpful for the generations coming? Means in the family, is it helpful? See, copyright on any literary work is throughout the author's life plus 60 years. So obviously, if someone has created really some good, nice poem hai ya novel likha hai, so it has lot of economic values, and the next generation will inherit it. I Okay, hope okay. it's Yes, clear. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Professor Barinder, kindly conclude. I think no one is there to ask, and all the जो पूरा लेक्चर था उसमें सभी के आंसर्स थे, या फिर वो सोच रहे होंगे। बाद में हम आपके पास क्वेश्चंस पहुंचा देंगे। प्रोफेसर Sure. बरिंदर, काइंडली। Ji, ma'am. Yeah. Ma'am, you have beautifully elaborated the concept of intellectual property rights as well as copyright. As has read that IPR is a right given to a person over the creation of their mind for a certain period. Ma'am has clarified the copyright as exclusive assignable right given to the originator for fixed number of years to print, publish, perform, film, record, literary or musical material. Ma'am has narrated the live practical example and cases and success stories of copyright and trademark. Thank you so much, ma'am, for your excellent deliberations about the said topic. Ma'am, I would like to thank our worthy principal, Dr. Neena Seth Pajani, also a dynamic, visionary, sagacious personality who always guide or motivates us to reach to the perfect by a skill-based and knowledgeable webinars. At the last, I would like to thank students, faculty members for joining this webinar. Hope all will be benefited from this knowledgeable lecture. Thank you so much, ma'am. Over to you, ma'am.
Hello.